Hello everyone, myself Sangeeta Nikam. Let's start our today's lecture, Science 2, chapter number 6, Animal Classification. In this chapter, we will see history of animal classification, new system of animal classification, and kingdom Animalia. Can you recall which criteria are used for classification of organism? The criteria used for classification of living organism are type of organism, prokaryotic, primitive without proper nucleus, example है bacteria, eukaryotic having true nucleus, example है plant. Eukaryotes are further divided into unicellular, example है amoeba, and multicellular hydra. Multicellular organism are divided into two groups, with cell wall and without cell wall. With cell wall are further divided मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स है ग्रीन प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉप्स है फंगी. विदाउट सेल वॉल में आता है किंगडम एनिमेलिया. वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in earlier classes. The living organism present around us are mainly plants and animals. We have studied the criteria of their classification. With the help of that, ये चार्ट कंप्लीट करना है हमें. Living organism are divided into two main groups, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes का स्पेलिंग है PROKARYOTES एंड यूकैरियोट्स का स्पेलिंग है EUKARYOTES. Prokaryotes means without distinct nucleus or cell organelles. In this unicellular organism are there kingdom Monera, example है bacteria. Eukaryotes are further divided into unicellular organism and multicellular organism. In unicellular organism, kingdom Protista, spelling है PROTISTA. Multicellular organism are divided into two groups, with cell wall and without cell wall. With cell wall organism are divided into two groups. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर टू ग्रुप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स मीनिंग दिस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें किंगडम प्लांटी है. हेटेरोट्रॉप्स आर किंगडम फंगी. These organisms depend on other organisms for food. These organisms could not prepare their own food. Multicellular organism without cell wall, kingdom Animalia. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल में हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड. प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमने देखा है. तो क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स. जैसे कि प्लांट्स में ऑर्गन्स होते हैं, फ्रूट, लीव्स, रूट, स्टेम. वो प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर फर्स्ट क्राइटेरिया प्लांट्स को क्लासिफाई किया है. सेकंड क्राइटेरिया है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. जैसे कि वाटर को कंडक्ट करने के लिए जाइलम होता है और फूड को कंडक्ट करने के लिए फ्लोएम होता है. थर्ड क्राइटेरिया है सीड्स आर एनक्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट. एंड फोर्थ क्राइटेरिया है नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन सीड्स. इट इज मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकॉटिलिडॉन्स. मोनो मीन्स वन कॉटिलिडॉन होता है एंड डाई मीन्स टू कॉटिलिडॉन्स आर देयर. We have studied the plants classification in last year. It helps us to understand the diversity of plants around us. You must be looking varieties of animals around you. Some animals are too small, whereas some are too big.
सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले. वेयर सम आर एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले. सम एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड, सम स्विम इन वाटर, वेयर एज सम फ्लाई इन एयर. Some animals have scales on skin, whereas some have feathers or hairs. In this way, there is huge diversity among the animals too. According to recent studies, estimated number of animal species on Earth is approximately 7 million. It is impossible to study each and every species. However, if groups and subgroups of animals are formed, depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study such vast varieties of animals. Next है एनिमल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है. फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स ऑफ एनिमल्स depending upon similarities and differences among animals is called animal classification. हिस्ट्री क्या है एनिमल क्लासिफिकेशन की. टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द एनिमल्स. ग्रीक फिलोसोफर Aristotle was the first to perform the animal classification. Aristotle classified the animals according to criteria like body, size, habits and habitats. Habits यानी कि उनकी आदतें क्या है. Habitats यानी वो कहाँ रहते हैं, रहने की जगह. Further, as per the new developments in sciences, references were changed, thereby the criteria of animal classification too. जैसे कि रहने की जगह पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसा कि व्हेल है वो मैमल है लेकिन वो पानी में रहता है, तो वो मैमल ज़्यादा परफेक्ट है अभी के क्लासिफिकेशन में. क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड. बिसाइड्स अरिस्टोटल, artificial method of classification was followed by Theophrastus, Pliny, John Ray, Linnaeus, etc. Later on, natural system of classification was followed. Natural system of classification was based on various criteria like body organization, types of cells, chromosomes, biochemical properties, etc. By the time the system classification based on evolution was also brought into practice. It was used by Dobzhansky and Mayer recently. Carl Huss has also proposed the animal classification. अभी ये एनिमल क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं. बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट. सब इतने 7 मिलियन एनिमल्स है तो उनका स्टडी करना कन्वीनियंट, हमें इजी पड़ जाता है. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम द ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप. इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के बारे में हमें आइडिया आती है. जैसे कि हमें पता है कि अभी काऊ एंड बफेलो है, तो ये जो दोनों एनिमल क्या करते हैं, दूध देते हैं, तो इनका इवोल्यूशन एक ही एनिमल से हुआ होगा. एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ ग्रेट एक्यूरेसी. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल. हैबिटेट यानी कि रहने की जगह. एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन नेचर. नेचर में उसका क्या एग्जैक्ट रोल है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस अडाप्टेशन शोन बाय एनिमल्स. तो ये सब बेनिफिट्स हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है. ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और absence of notochord, the animal kingdom has been divided into two groups, non-chordates and chordates. अभी notochord क्या है. Notochord is long rod-like supporting structure
प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल। डॉर्सल साइड यानी कि पीछे की साइड, जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, मैमल्स में क्या होता है, हम में वर्टिब्रल कॉलम है, वो हमारे पीठ के साइड में होता है, वो डॉर्सल साइड होती है। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। तो नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है? पहला है बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड इज absent इन नॉन कॉर्डेट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर absent। गिल स्लिट्स जैसे कि फिश में गिल स्लिट होता है जो सांस लेने के लिए काम आता है, ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए बाहर, ऐसा ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो होता है वो नॉन कॉर्डेट्स में absent होता है। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पेयर। वेंट्रल साइड मतलब हमारे पेट की जो आगे की साइड होती है, पेट की बाजू की, उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डॉर्सल साइड, यानी कि नॉन कॉर्डेट्स में हमारा हार्ट क्या होता है, वेंट्रल साइड में होता है, हम कॉर्डेट्स हैं। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनका जो हार्ट अगर प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट होता है तो पीछे वाली साइड में, जैसे कि पीठ वाली साइड में प्रेजेंट होता है। तो कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स हैं, कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स हैं, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट, lungs are present for respiration. Nerve cord if present on dorsal side of body. नर्व कॉर्ड अगर है तो क्या वो डॉर्सल पीछे वाली साइड में होती है। इट इज़ हॉलो, हॉलो यानी कि एम्प्टी, पोकड़ होती है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, जैसे कि हमारा हार्ट जो होता है वो आगे वाले साइड में है, पेट वाले साइड में, तो वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। तो ये है किंगडम एनिमेलिया। Kingdom Animalia is divided into two subkingdom. Subkingdom non-chordates and subkingdom chordates. Subkingdom non-chordates are divided into 10 phylum. Phylum Protozoa, Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and Hemichordata. All chordates animals are grouped together in a single phylum, and name of phylum is Phylum Chordata. This phylum has been divided into 3 subphyla as Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Subphylum Vertebrata has been further divided into 6 classes as class Cyclostomata, class Pisces, class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. This system of animal classification was in practice till now. However, nowadays new system of classification is followed. We will see this new system of animal classification in brief. At present, according to 5 kingdom classification system of Robert Whittaker, all the multicellular animals are included in kingdom Animalia. This system of classification is based upon some criteria like body organization, body symmetry, body cavity, germinal layer and segmentation etc. तो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Body of animals is made up of cells. You know, all living organisms are made up of cells. Cell is a basic structural and functional unit of living organism. Cell इकट्ठा आते हैं सब तो
टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन की क्या होती है, हमारी बॉडी बनती है। ऑर्गन सिस्टम के बाद में क्या होता है, हमारी बॉडी बनती है। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स many cells are performing different functions in their body, while in unicellular animals, as their body is made up of single cell, unicellular organism is made up of only one cell, and all functions are performed by same cell only, यानी कि वन सेल जो है वो पूरा सब काम कर देती है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इंजेशन है, ऑल दीज एक्टिविटीज are performed by only one cell. Body organization of unicellular animals is referred as protoplasmic grade organization. उसको जो ग्रेड है वो कौन सी है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. In case of multicellular animals, if tissues are not formed, their body organization is called cellular grade organization. जैसे कि फाइलम पोरीफेरा में सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. इन केस ऑफ सम एनिमल्स, सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म. यानी कि सिर्फ टिश्यू होते हैं, ऑर्गन तैयार नहीं होते हैं. सच एनिमल्स शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि एनिमल्स फ्रॉम फाइलम निडारिया, उसमें क्या होता है, सिर्फ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है. फ्लैटवर्म शोज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सम ऑर्गन्स. यहाँ क्या होता है, थोड़े ऑर्गन्स तैयार होते हैं. हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स आर नॉट फॉर्म. यहाँ क्या होता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म नहीं होती है. Beside the 4 types of body organization mentioned above, remaining all animals show organ system grade organization, in which different organs are joined together to form organ system that perform specific function. Example है crab, frog, human. हमारे ह्यूमन बीइंग में देखो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरे क्या करते हैं, वर्क करते हैं. तो आगे है, ये हुआ ऑल अबाउट ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. बाद में दूसरा पॉइंट है वो है बॉडी सिमेट्री. इन imaginary sense, if body of any animal is cut through imaginary axis of body, it may or may not produce 2 equal halves, and depending upon this property there are different types of animal bodies, जैसे कि asymmetrical body. In case of such body, there is no any such imaginary axis of body through which we can get 2 equal halves. जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड सम स्पॉन्जेस है, उनकी बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट में इक्वल नहीं हो पाती, तो वो है असिमेट्रिकल बॉडी. रेडियल सिमेट्री. इन दिस टाइप ऑफ बॉडी, इफ इमेजिनरी कट passes through central axis but any plane of body, it gives 2 equal halves. जैसे कि स्टारफिश की बॉडी है, वो क्या होती है, इन केस ऑफ दिस एनिमल देयर आर 5 different planes passing through central axis of body and through which we can get 2 equal halves. Bilateral symmetry. In this type of body, there is only one such imaginary axis of body through which we can get 2 equal halves. Example है insect, fishes, frog, birds, human. तो ये हुआ bilateral symmetry. तो ये types of body symmetry है, asymmetrical body, radial symmetry and bilateral symmetry. अभी थर्ड है germ layers.
डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो मीन्स 2 लेयर का बॉडी होती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर होते हैं. इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, germ layers are formed during initial period of their embryonic development. ये जो लेयर दिखाई देते हैं वो कब दिखाई देते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की समय. From those germ layers only different tissues are formed in the body. In case of some animals, only 2 germ layers, endoderm एंड एक्टोडर्म. जैसे कि एंडो मीन्स अंदर का डर्म होता है और एक्टो मीन्स बाहर का लेयर होता है. एग्जाम्पल है ऑल निडारियंस आर डिप्लोब्लास्टिक. इन मोस्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग एनिमल्स 3 germ layers आर फॉर्म. मीजोडर्म बिसाइड्स एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. यानी कि अंदर एंडोडर्म होता है, बाहर एक्टोडर्म होता है और बीच में क्या होता है? मीजोडर्म होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज सीलोम. कैविटी बिटवीन बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी और सीलोम. इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बॉडी कैविटी इज फॉर्म फ्रॉम आइदर मीजोडर्म or gut. Such type of body cavity is present in animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida. Annelida के बाद में जो phylum आते हैं उसमें. Such animals are called as eucoelomate. eucoelomate का मीनिंग ही है animals with true body cavity. यानी कि उनमें क्या होती है? बॉडी कैविटी ट्रू होती है. Body cavity is absent in case of animals from phyla Porifera, Cnidaria and Platyhelminthes. Such animals are called as acoelomate. Acoelomate means यहाँ क्या होता है? Body cavity is absent. In case of animals from phylum Aschelminthes, they have body cavity, but it is not formed by above mentioned 2 ways. Hence, those animals are called as pseudocoelomate. Pseudo means क्या? False. उसकी बॉडी कैविटी क्या होती है? फॉल्स होती है. नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सेगमेंटेशन. इफ बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स, then such a body is called as segmented body, and each small unit is called as segment. Example है animals like earthworm from phylum Annelida. उनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है. तो यहाँ जो चार्ट दिखा है इसमें हमने जो पढ़ा है, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स की होती है, सेल्युलर ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड. अभी सेल्युलर ग्रेड असिमेट्रिकल बॉडी होती है, वो असिलोमेट होते हैं एंड फाइलम उसमें है पोरीफेरा. रेडियल सिमेट्री में असिलोमेट होते हैं, निडारिया इसमें आता है. और बायलैटरल सिमेट्री में असिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट. यूसिलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी होती है एंड सूडोसिलोमेट यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी. असिलोमेट बॉडी कैविटी इज absent in Platyhelminthes एंड सूडोसिलोमेट है Aschelminthes का. एंड यूसिलोमेट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा and chordata. Now we are going to learn phylums of kingdom Animalia in details. First phylum है Porifera. These animals are with simplest body plan and are called sponges. They bear numerous pores on their body.
Those pores are called as ostia and oscula. यानी कि छोटे छोटे होल पूरे बॉडी पर होते हैं एंड उस होल्स को ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला कहा जाता है. दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मराइन यानी कि सी वाटर में रहते हैं एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स, फ्रेश पानी में भी रहते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी. Asymmetrical body means cut through any imaginary axis. We won't get equal halves. These animals have special types of cells, that is collar cells. These animals are always attached to substratum, hence do not show locomotion. Hence they are referred as sedentary animals. यानी कि ये एनिमल्स जो होते हैं वो किसी भी अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम को और लोकोमोशन यानी कि हलचल नहीं करते हैं, तो इसके लिए उसको सेडेंटरी एनिमल्स कहा जाता है. देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. These animals feed upon small organisms taken in their body along with water. Water is taken in through ostia and given out through oscula. यानी कि जो पोर्स होते हैं, जो ऑस्टिया होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी अंदर लेते हैं और ऑस्कुला जो होते हैं वो ऑस्कुला से पानी बाहर छोड़ा जाता है. These animals reproduce by budding and asexual method or bisexual method. Besides, they have good ability of regeneration. Regeneration means कौन सा भी पार्ट उसका कट गया तो उससे दूसरा एनिमल तैयार होता है. एग्जाम्पल है साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, उसको बाथ स्पंज भी बोलते हैं, हाइलोनिमा एंड यूप्लेक्टेला etc. आर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा. सेकंड फाइलम है फाइलम सिलेंड्राटा, उसको निडारिया भी कहते हैं. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक. इफ इट इज सिलेंड्रिकल it is called as polyp, and if it is umbrella like called as medusa. Most of these animals are marine यानी कि समुद्र में रहने वाले, सी में रहने वाले. Only few are fresh water dwellers यानी कि फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज रेडियल सिमेट्रिकल. Radial symmetry means the body can be divided into two equal halves by any plane of body passing through central axis. And diploblastic यानी कि दो जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. Nidoblast bearing tentacles are present around the mouth. Tentacles are useful for capturing the prey. Prey मतलब शिकार, उनका खाना जो होता है वो पकड़ने के लिए टेंटैकल्स यूजफुल होता है. वेयर एज निडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे. कभी कभी क्या किया जाता है, प्रे के अंदर पॉइजन टॉक्सिन इंजेक्ट किया जाता है और मार दिया जाता है और वो टेंटैकल्स क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे को. दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू. दूसरे एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये निडोब्लास्ट यूजफुल होते हैं. एग्जाम्पल है हाइड्रा, एडाम्सिया, उसको सी एनिमोने भी बोलते हैं, फाइसेलिया, पोर्तुगीज वर्ड है मैन ऑफ वॉर, ऑरेलिया दैट इज जेलीफिश एंड कोरल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा. थर्ड फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स आर slender and flat.
like leaf or strip. Hence they are called flatworm. यानी कि रिबन की जैसी, लीफ के जैसी फ्लैट बॉडी होती है इनकी, सो उसके लिए उसको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स मीन्स organism present inside the host for shelter and nutrition. Endo means inside and parasite means which depend on another animal. यानी कि होस्ट के बॉडी में रहते हैं, इसके लिए उसको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं. फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक. थोड़े जो होते हैं ऐसे भी रहते हैं पानी में, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले. बॉडी इज असिलोमेट. असिलोमेट्स का मीनिंग है विदाउट बॉडी कैविटी. एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल मीन्स ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी produces two equal halves is called as bilateral symmetry. These are diploblastic. Their body is made up of 3 germ layers: endoderm, ectoderm and mesoderm. These animals are hermaphrodite. Hermaphrodite means that is male and female reproductive systems are present in the same animal body. यानी कि hermaphrodite एनिमल में मेल और फीमेल डिफरेंट नहीं होता है, एक ही एनिमल होता है और उसमें ये दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है. इसको बाइसेक्सुअल एनिमल भी बोलते हैं. एग्जाम्पल है प्लानारिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म. तो फोर्थ फाइलम है एस्केलमेंथिस. फाइलम एस्केलमेंथिस. Body of these animals is long, thread-like or cylindrical. Cylindrical body होती है, hence they are called as roundworms. These animals are either free-living or endoparasites. ये भी क्या होते हैं? Endoparasite होते हैं. दूसरे के बॉडी में, दूसरे ने जो फूड बनाया है उसके ऊपर जिंदा रहते हैं. Free-living animals are either aquatic और टेरेस्ट्रियल, यानी कि पानी में रहने वाले भी होते हैं और कुछ ज़मीन पर, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले भी होते हैं. बोथ ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर्स आर देयर, जैसे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म होता है. एंड सीडोसिलोमेट. सीडो मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी होती है इनकी. Body of these animals is non-segmented and covered with tough cuticle. Cuticle यानी कि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है, टफ होती है. These animals are unisexual. Unisexual मतलब मेल एनिमल एंड फीमेल एनिमल अलग अलग होता है. एग्जाम्पल है एस्कैरिस, इंटेस्टाइनल वर्म यानी कि ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहते हैं. फाइलारियल वर्म, लोआ आई वर्म बोलते हैं उसको, एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एस्केलमेंथिस. फिफ्थ फाइलम है फाइलम एनेलिडा. यो लैटिन वर्ड है एनुलस मीन्स लिटिल रिंग. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड metamerically segmented. Most of these animals are free living but few are ectoparasites. 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स. एंडो मतलब इनसाइड द होस्ट बॉडी रहने वाले, एंड एक्टोपैरासाइट मतलब आउटसाइड द होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे कि जुए होते हैं बाल में आते हैं, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं. फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मराइन मीन्स समुद्र में रहने वाले, और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले. लिविंग ऑन लैंड इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल. दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3 जर्म लेयर होते हैं. बायलैटरल सिमेट्री
मतलब एनी वन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस टू इक्वल हार्म्स एंड यूसिलोमेट यानी कि इनकी क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है. दे हैव सिटी और पैरापोडिया और सक्कर्स फॉर लोकोमोशन. लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में मूवमेंट करने के लिए उनको क्या होती है, सीटी होती है, कि इसको पैरापोडिया भी बोलते हैं, सक्कर्स भी बोलते हैं. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल. क्यूटिकल यानी कि स्किन. These animals are either hermaphrodite और यूनिसेक्सुअल, यानी दोनों तरह के होते हैं. बहुत सारे hermaphrodite होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल, और कहीं कहीं में मेल एनिमल एंड फीमेल एनिमल भी अलग अलग होता है. एग्जाम्पल है अर्थवर्म. अर्थवर्म जो है वो hermaphrodite है. लीच, नेरिस, ये एग्जाम्पल है फाइलम एनिलिडा के. यहाँ गेट द इन्फॉर्मेशन में आपको पूछा है क्वेश्चन, व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. यू नो अर्थवर्म मूव थ्रू द सॉइल इन द farms and fields. They feed on detritus in the soil. They also help decomposition of organic matter. When the soil is loosened due to their enrich the soil by their excreta, they enrich the soil by their excreta which act as a fertilizer. All these facts make earthworm as a farmer friend. Second question पूछा है, how may, in what way the leech is used in Ayurvedic system of treatment. लीचेस ये फाइलम एनिलिडा में होते हैं. Leeches are blood-sucking ectoparasite. In Ayurveda, leech is used to remove impure blood and blood clots. यानी कि यानी ब्लड के गाँठें आते हैं, क्लॉट्स, वो निकालने के लिए लीच का यूज़ किया जाता है. Such blood is sucked up by leech. Then the patient gets some relief. In the leech body, there is a substance called hirudini, which prevents blood clotting as it sucks up the blood. And this hirudini is also used for medicinal purpose. तो नेक्स्ट फाइलम है फाइलम 6, फाइलम आर्थ्रोपोडा. उसका मीनिंग है आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड एंड पोडास मीन फुट. ये फाइलम में जो एनिमल होते हैं उनके जो फुट होते हैं, फीट होते हैं, वो क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड. इसके लिए उसको बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा. यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्थ्रोपोडा की, जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस. These animals have jointed appendages, hence they are called arthropods. Planet Earth has highest number of animals from this phylum. Hence, this is the largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. यानी कि ये फाइलम के एनिमल्स बहुत सारे हैं, तो इसके लिए वो लार्जेस्ट फाइलम है. These animals are found in all types of habitats, ranging from deepest ocean to highest mountains. यानी कि ये फाइलम के जो एनिमल्स है वो सभी जगह पाए जाते हैं. यानी कि ओशन के डीप में भी होते हैं, माउंटेन के ऊपर होते हैं, हवा में रहते हैं, बहुत सारी जगह में रहते हैं. इसके लिए उसकी लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर होते हैं. Body of these animals is triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर जर्म लेयर होते हैं.
यूसिलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी होती है, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड. काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी. अभी एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज काइटिन. काइटिनस बॉडी मतलब क्या. काइटिनस बॉडी मतलब काइटिन से बनी हुई बॉडी. तो काइटिन क्या होता है. काइटिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड. इट इज अ पॉलीमर. इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर. इट इज लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, which is actually derivative of glucose. It is a primary component of cell walls in fungi and exoskeleton of arthropods is made up of this chitin. These animals are unisexual. यानी कि आर्थ्रोपोड जो एनिमल होते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल एनिमल एंड फीमेल एनिमल अलग अलग होता है. एग्जाम्पल है क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीडी, सेंटीपीडी. अभी मिलीपीडी यानी कि हज़ारों पैर होते हैं उसके, और सेंटीपीडी मतलब 100 पैर होते हैं. एंड कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी etc. are the examples of arthropods. अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा है, बेनिफिट्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. बेनिफिट्स एंड जो हार्म टू ह्यूमन्स, हाउ बेनिफिट्स टू ह्यूमन बीइंग्स आर्थ्रोपोड्स आर. Butterflies act as effective pollinators for flowering plants. Honey and wax can be obtained from honeybee. They are also effective pollinators. Crab and prawns are edible and used as food. Centipede and millipede help in converting plant and animals waste into organic matter. This organic matter helps to improve soil fertility. Silk is obtained from silkworm through sericulture. Cockroach feeds on decaying organic matter, acting as decomposer. It also helps in nutrient cycling. अभी हार्म क्या है इसके. स्कॉर्पियंस बाइट इज पॉइजनस एंड मे इवन बी फटल. Insects directly compete with human beings for food. They destroy food grains, eat leaves of plants and tuberous roots. Cockroach may cause contamination of food that we eat. Mosquitoes, mites and ticks cause diseases in human being. You know, dengue, malaria are spread by mosquito. अभी नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलुस्का. 7 फाइलम है फाइलम मोलुस्का. ये जो वर्ड है मोलुस्क मतलब सॉफ्ट. ये फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है. मोलुस्का का ही मतलब है सॉफ्ट. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी, यानी कि चिकट ऐसा स्लिम होती है. Hence they are referred as mollusk. This is second largest phylum in animal kingdom. First largest kingdom phylum कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और second largest phylum है मोलुस्का. These animals are aquatic, यानी कि पानी में रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल, कुछ lives on land also. Most of the aquatic mollusks are marine, समुद्र पानी में सी वाटर में रहते हैं. बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स टू, मीठे पानी में रहने वाले भी होते हैं. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट. एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री. सिर्फ स्नेल की बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती है, बाकी सबकी बायलैटरल सिमेट्री होती है.
Their body is divided into three divisions like head, foot and visceral mass. Visceral mass is covered with mantle. This mantle secretes a hard calcareous cell. This cell may be external or internal or even absent in some cases. These animals are unisexual, यानी कि मेल एंड फीमेल एनिमल आर डिफरेंट यूनिसेक्सुअल होता है. एग्जाम्पल है बी वॉल, स्नेल, ऑक्टोपस एट्सेट्रा. अभी नेक्स्ट फाइलम है फाइलम नंबर 8, फाइलम एकिनोडर्माटा. एकिनोस इसका मीनिंग है स्पाइंस एंड डर्मा मीन्स स्किन, यानी कि ये फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन स्पाइनी होती है. कैलकेरियस स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज इकिनोडर्म्स. दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन, समुद्र में ओशन में पाए जाते हैं. देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक eucoelomate and it is radially symmetrical in adult stage. However, they show bilateral symmetry in larval stage. उनकी लार्वल स्टेज में वो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं और जब एडल्ट होते हैं वो तो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं. दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है वो ट्यूब फीट से होती है. ट्यूब फीट आर आल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. प्रे यानी कि उनको खाना पकड़ने के लिए, उनका शिकार पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए ट्यूब फीट की मदद होती है. सम एनिमल्स आर सेडेंटरी. सेडेंटरी यानी कि एक जगह में स्टिक होके रहते हैं, सबस्ट्रेटम को पकड़ के रहते हैं, सेडेंटरी बोलते हैं उसको. दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइंस and ossicles, that is plates. These animals have good ability of regeneration. रीजनरेशन की गुड एबिलिटी होती है, जैसे कि उसका एक आध आर्म टूट गया तो उस आर्म से पूरी एनिमल तैयार होता है. These animals are mostly unisexual, यानी कि मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर देयर unisexual. एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार एंड सी कुकुम्बर एट्सेट्रा. अभी नेक्स्ट फाइलम है फाइलम 9 नंबर का फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डाटा. फाइलम हेमिकॉर्डाटा. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक. Notochord is present in proboscis region only, hence they are called as hemichordata. यानी कि नोटोकॉर्ड, जैसे कि कॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वैसे इनके सिर्फ एक ही पार्ट जो होता है प्रोबोसिस, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए उसको हेमिकॉर्डाटा बोलते हैं. दीज एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अकॉर्न वर्म्स. These are marine animals, live in burrows in sand, यानी कि होल बना के उसमें रहते हैं, बरोज, खुद को जैसे रैट रहता है बरो बना के, वैसा ये भी एनिमल समुद्र में होल बना के रहता है. They have one or many pharyngeal gill slits. They are unisexual or some may भी हर्माफ्रोडाइट. यूनिसेक्सुअल भी होते हैं एंड हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल्स में भी होती है. एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लासस. दीज आर द एग्जाम्पल. Through the viewpoint of evolution, Balanoglossus is considered as connecting link between non-chordates and chordates. This animal shows characters of both the groups, and so it is also called as a hemichordata.
नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डाटा. These animals have supporting notochord in their body. All chordates are included in the same phylum. The phylum Chordata is classified into 3 subphyla. Following are important characters in phylum Chordata. Notochord is present in the body during at least any development stage. कौन से भी डेवलपमेंट स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते ही हैं. Pharyngeal gill slits are present in the body during at least any development stage में. Single tubular spinal cord is present on dorsal side of the body. Heart is present on the ventral side of the body. Dorsal side और ventral side, जैसे कि dorsal side यानी कि पीठ की साइड एंड वेंट्रल साइड यानी कि पेट की तरफ की जो साइड होती है उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, आगे वाली साइड. तो सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा. दीज आर मराइन एनिमल्स, यानी कि पूरे के पूरे जो एनिमल्स होते हैं उसमें वो सी वाटर में रहने वाले होते हैं. देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक. लार्वी ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. यानी कि लार्वल स्टेज में यूरोकॉर्डाटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इन ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वा. ये जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ टेल के रीजन में प्रेजेंट होता है. हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डाटा. लार्वी मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ द बॉटम ऑफ द सी. बाद में वो बॉटम में जाते हैं सी के. जनरली दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट. एग्जाम्पल है हर्डमानिया, डॉलियोलम, oikoplura. These are the example of subphylum Urochordata. Second subphylum है Cephalochordata. These are small fish-like marine animals. Notochord is present throughout the body length. यहाँ डायग्राम में दिखाया है नोटोकॉर्ड. Pharynx is very large and contains gill slits. Pharynx जो होती है वो वेरी लार्ज होती है. These animals are unisexual. एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस. थर्ड सबफाइलम है वर्टिब्रेटा, इसको क्रैनिएटा भी बोलते हैं. इन दीज एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है. ह्यूमन बीइंग भी वर्टिब्रेटा में, हम सब क्या होते हैं वर्टिब्रेटा में आते हैं. सब फाइलम वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम. इन दीज एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप्ड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम, एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी. अभी हमारा जो स्केलेटन है वो बोनी है. कार्टिलेजिनियस मतलब हमारे कान के जो बोन होते हैं, कान के और नाक के, वो कार्टिलेजिनियस से बने हुए हैं. जैसे कि ज़्यादा हार्ड नहीं होते, थोड़े सॉफ्ट होते, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस. सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस एग्नाता, whereas some are with jaws, उसको gnathostomatā बोलते हैं, gnathostomatā. Subphylum Vertebrata is divided into 6 classes. First class है class Cyclostomata. These animals have jawless mouth provided with sucker. इसमें जॉ नहीं होती, जबड़ा नहीं होता है, jawless. तो mouth is provided with sucker. Their skin is soft and without any scale. Scale नहीं होते उसके स्किन के ऊपर. Paired appendages are absent. Appendages यानी के legs पैर में नहीं होते. Endoskeleton is cartilaginous. जो अंदर का स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स, यानी कि दूसरे के बॉडी के ऊपर रहते हैं.
तो ectoparacytes. Example, Petromyzon, Myxine, etc. सेकंड क्लास है क्लास पाइसेस. ये क्लास के सभी एनिमल एक्वेटिक होते, यानी कि पानी में रहने वाले. दीज आर कोल्ड ब्लडेड, उसको पॉइक्युलोथर्म्स ये भी बोलते हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल को पॉइक्युलोथर्म्स बोलते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मराइन एंड फ्रेश वाटर. बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस. स्पिंडल शेप मतलब आगे वाला थोड़ा कम शेप होता है, बाद में ऊंचा शेप होता है, बाद में कम मिनिमाइज होता है. तो वाटर में स्विम करने के लिए वो स्पिंडल शेप उनको काम आता है. दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग. कई कई जगह पेयर्ड फिन्स होता है और कभी कभी ये लैटरल फिन जो है वो अनपेयर्ड है, एक ही पेयर. टेल फिन इज यूजफुल एज स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग. स्टीयरिंग ऑर्गन मतलब उसको अगर दिशा बदलनी है तो उसका काम स्टीयरिंग ऑर्गन जैसा टेल फिन का होता है. एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी. रेस्पिरेशन ऑकर्स विथ गिल्स. ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पाइसेस में क्लास पाइसेस में जो है रेस्पिरेशन उसमें गिल्स होता ही है. एग्जाम्पल्स है रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे एट्सेट्रा. अभी नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया. एम्फीबिया क्लास में जो एनिमल है फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. इसके लिए उसको एम्फीबिया, एम्फी मीन दोनों जगह रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल लाइफ. यानी कि उनकी लार्वल लाइफ के लिए पानी की बहुत ज़रूरी होती है. एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, whereas they can live in water as well as on land during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration. जब वो पानी में रहते हैं एडल्ट होने के बाद तो उनकी जो स्किन है वो स्किन से वो रेस्पिरेशन करते हैं और जब ज़मीन पे आते हैं लैंड पे तो उसमें लंग्स होते हैं. They have two pairs of appendages. Digits are without claws. Exoskeleton is absent. Skin is without any derivative and usually kept moist for respiration. तो उनकी जो स्किन होती है हमेशा मॉइस्ट रहती है, तो पानी में उनको रेस्पिरेशन के लिए काम आती है. एक्सटर्नल ईयर इज absent but tympanum is present. Neck is absent. Eyes are prominent with eyelids. ये जो prominent eyes का उनको पीछे भी देखने के लिए, सब जगह देखने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि इन नेक absent होती है, हमारे पास नेक है तो हम पीछे मुड़ के देख सकते हैं, लेकिन इनकी नेक absent है तो उसके लिए उनके आईज जो होते हैं वो prominent होते हैं with eyelids. एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर. नेक्स्ट क्लास है क्लास रेप्टिलिया. इन दिस क्लास क्राउलिंग एनिमल्स आर प्रेजेंट. क्राउलिंग सरपटणारे प्राणी, क्राउलिंग एनिमल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास. अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन, these are first true terrestrial animals with creeping movement. These are cold-blooded poikilotherms animals. They creep on land as their body cannot be lifted up. Their skin is dry and scaly
नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, नेक प्रेजेंट होती है इसमें। एक्सटर्नल ईयर इज absent, एक्सटर्नल ईयर absent होता है इसमें। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज, एग्जाम्पल है टॉर्टॉइज, लिजार्ड, स्नेक एट्सेट्रा। अभी नेक्स्ट क्लास है क्लास एव्स। इस क्लास का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। These vertebrates are completely adapted for aerial life, हवा में उड़ने के लिए पूरा इसका अडेप्टेशन हुआ है। These are warm blooded, होम्योथर्म्स बोलते हैं वार्म ब्लडेड को, दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, वार्म ब्लडेड के। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो उनका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, हवा में उड़ते समय हवा का जो रेजिस्टेंस है कम करने के लिए उसकी बॉडी क्या होती है, स्पिंडल शेप होती है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो आगे के पैर होते हैं उसका रूपांतर, उसका मॉडिफिकेशन वो फीदर्स में होता है। डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड बियर क्लॉज, क्लॉज होते हैं उसके। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फीदर्स। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, उनका जो जॉ है वो मॉडिफाई होता है बीक में। एग्जाम्पल्स हैं पिकॉक, पैरट, पिजियन, डक एंड पेंगुइन्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास है क्लास मैमलिया। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमलिया। मैमलिया के टिपिकल कैरेक्टर क्या है, मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। जैसे कि गाय भैंस जो होते हैं दूध देते हैं उसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, यानी कि 4 पार्ट होते हैं बॉडी के। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, क्लॉज और हूव्स। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर। ये मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं या फर होती है। एग्जाम्पल है एलिफेंट, ह्यूमन, कांगारू, डॉल्फिन, बैट एट्सेट्रा। जैसे कि डॉल्फिन जो है वो पानी में रहने वाला है और बैट जो है हवा में उड़ने वाला एनिमल है। अभी यहाँ जो क्वेश्चन पूछे यूज योर ब्रेन पावर में कि एनिमल्स लाइक घड़ियाल और क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल, घड़ियाल मतलब मगर, live in water as well as on land. Are they amphibians or reptiles? घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल आर रेप्टाइल्स। ये एम्फीबियंस नहीं है, रेप्टाइल्स है। क्यों? दे कैन स्विम इन वाटर एंड क्रॉल ऑन लैंड, बट दे कैन रेस्पायर ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स। देयर ब्रीदिंग इज थ्रू नॉस्ट्रिल्स, हमारे जैसे नाकपुड़िया होते हैं, नॉस्ट्रिल्स। Even when in water, they have to inhale or exhale by coming up to the surface of water for air. वो अगर पानी में रहते हैं तो सरफेस पर आते हैं और हवा लेते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए वो सरफेस पे आते हैं। एम्फीबियंस कैन ब्रीथ थ्रू द स्किन when in water and by lungs when on land. यानी कि उनको दोनों तरफ क्या करना होता है, रेस्पिरेशन करने को आता है। स्किन होती है जब वो पानी में रहते हैं वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, और जब ज़मीन पे आते हैं तो लंग्स होते हैं।
They also have hard exoskeleton which amphibians do not have. एक्जोस्केलेटन जो होता है घड़ियाल का और क्रोकोडाइल का, उसका एक्जोस्केलेटन क्या होता है? हार्ड होता है. एम्फीबियंस का एक्जोस्केलेटन हार्ड नहीं होता है. डू नॉट हैव. घड़ियाल्स एंड क्रोकोडाइल कैन नॉट डू सो, हेंस दे आर नॉट एम्फीबियंस बट दे आर रेप्टाइल्स. अब सेकंड क्वेश्चन है, एनिमल्स लाइक व्हेल, वॉलरस लिव इन वाटर, ओशन में रहते हैं. आर दे इंक्लूडेड इन पाइसेस और मैमिलिया? व्हेल एंड वॉलरस आर एक्वेटिक एंड मराइन एनिमल्स. मैमल्स है. वो क्या है? मैमल्स है. दे डू नॉट बिलोंग टू क्लास पाइसेस. दे डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. जैसे कि पाइसेस में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में, वो गिल्स से वो ले सकते हैं. लेकिन व्हेल एंड वॉलरस ये नहीं ले सकते. नाइदर दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडी नॉर कैन दे ले एग्स. जैसे कि पाइसेस में जो एनिमल्स है क्लास पाइसेस में, दे ले एग्स. बट जो वॉलरस और व्हेल है वो डू नॉट ले एग्स. Whales and walrus have mammary glands like all other mammals. They give birth to live young one. They breathe only with the help of lungs by putting their nostrils out of the water at the surface. Hence they are included in Mammalia. Always remember, varieties of animals are found in our surroundings. We should be cautious about the not causing any harm to animals during their studies and observation. जैसे कि varieties of animals है, उसका जब स्टडी करते हैं, जैसे कि उनका इंटरनल ऑर्गन देखना है, तो उसको हार्म नहीं करना चाहिए. ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. थैंक यू.